Hello students, this is Zaid Ved welcoming you all in the part 3 of chapter number 1. Chapter number 1 is knowing our number. Today we are going to start our chapter number 1 exercise 1.2. Okay, I written on the board C. I written some important points over here. You have to keep in your mind, that is 10 mm is equal to 1 centimeter. Okay, then 1 meter is equal to 100 centimeter, or you can say 1 meter is equal to 1000 mm. Mm means millimeter. Okay, cm means centimeter. Then after 1 km means 1 kilometer is equal to 1000 meter. Now 1 gram is equal to 1000 milligram. Okay, 1 liter is equal to 1000 milliliter. Now you have to remember these sums units in your mind. Okay, now moving on, question number 1 of exercise 1.2. So see in your book, I will read the question. A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter of the first, second, third and the final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the dates. Okay, so we have to find the tickets sold in all 4 days. Okay, they give us that in first day they sold the ticket that much, and on second day, on third day, on fourth day. Okay, we have to give the answer, okay, for total days. So on first day, ticket sold. So how we will write ticket sold at first day. That will be 1094. 1094. Then ticket sold at second day is equal to 1812. 1812. Similarly, ticket sold on third day is equal to 2050. Similarly, ticket sold at final day, or you can say fourth day, is equal to 2751. Okay, now we have to give the answer that find the total number of tickets sold on all the 4 days. So therefore total ticket sold at all days or you can say all 4 days, you can write also like this. So is equal to 1094 on first day plus 1812 on second day plus 2050 on third day plus on last and final day, you can say fourth day, that is 2751. Now we will add the number. Okay, so 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751. We'll add this number. Okay, so in 4 plus 2, 4, 5, 6, 7, 10 plus 1, 11 plus 9, 20, 8, 9, 10 plus 7, 17. Okay, this is our carry.
I am making circle. 1 2 3 4 5 6 7. So our answer is 7707. 7707. I will make the comma. I will insert the comma as per Indian system. Okay, I will here make a comma after 3 digit. Okay, this is our answer. You can say that 7707 ticket has sold on total days. Now moving on question number 2. Moving on question number 2, that Shekhar is a famous cricket player. He has scored so far 6980 runs in a test match. He wished to complete 10,000 runs. How many more runs does he needs? अब इसमें क्या है, शेखर है one person who has already completed so far already run, he completed 6980 run he had completed. Okay, now he want to made a 10,000 runs. Okay, he want to made a 10,000 runs. उससे 10,000 रन बनाने हैं. उसने 6980 रन पहले से ही कर दिए हैं. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें फाइंड करना है हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, हमें कितने ज़्यादा और रन करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अब क्या इसमें करना है, माइनस करना है. ठीक है, सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टोटल नंबर ऑफ रन्स टू बी मेड. ओके, टोटल number of runs to be made. Okay, so we can write here 10,000. Second, they ask that number of runs already scored. Okay, number of runs already scored, that is 6980. 6980. So he want to reach here. Okay, so how many runs needed to reach here? 10,000 runs. So we have to minus. Therefore, we can write that the number of runs to be made. Okay, so we can say number to be need. Okay, is equal to 10,000 minus 6980. Okay, now we have to minus this 10,000 minus 6980. Already I had told you that one thing you have to keep in your mind, जब कभी भी आप मैथ्स का सम सोल्व करते हो ना, उसके राइट हैंड साइड पे एक लाइन खींच लो, वहाँ पे लिख दो रफ साइड. ओके, रफ साइड RS. आपको आपकी बुक में भी राइट साइड में एक लाइन बना देनी है. तो आपको प्लस माइनस करना हो तो आप यहाँ पे साइड में कर सकते हैं. बीच में करोगे तो गंदा दिखेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा. ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे यहाँ पे दैट 10,000 माइनस 6980. 6980. तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3020. क्या रहेगा, 3020. 0 का 0. ठीक है, कट हुआ तो 10 हो गया, फिर क्या हुआ 9 हो गया, फिर अगेन 9 हो गया, देन ये 0 हो गया. ओके, ये 3020. राइट दिस आंसर हियर 3020. अब शेखर को 3020 रन चाहिए 10,000 तक पहुंचने के लिए. ठीक है, राइट इन योर बुक दिस क्वेश्चन एंड आंसर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट in an election, okay, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,500 votes. अब ये क्या बता रहे हैं कि
एक इलेक्शन था, उसके अंदर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जिसके अंदर रजिस्टर हुए 5,77,500 वोट्स। तो पहले हम लिखेंगे वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वोट secured by successful candidate is, ठीक है, कितना लिखेंगे 5,77,500, 5,77,500। आपको एक चीज दिमाग में ध्यान रखनी है, जब कभी भी क्वेश्चन रीड करते हो उसमें जो कुछ भी दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, उसे एक बार पढ़ के अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि जो कुछ भी बोला है उसने। जैसे किसने बोला था कि सक्सेसफुल कैंडिडेट का इतना स्कोर है, इतना वोट्स है, तो मैंने क्या लिख दिया, वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। कितना है 5,77,500। अब सेकेंड पॉइंट क्या दिया है कि एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700। सो वी कैन राइट दैट वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल। ओके, यही लिखना है। क्या उसमें चेंज क्या कर देंगे, वोट सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल। ओके, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सक्सेसफुल कैंडिडेट की जगह पे नियरेस्ट राइवल लिखना है। कितना स्कोर है उसका, वोट है 3,48,700। अब फाइन क्या करना है वो पढ़िए। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब इसमें से पता चल रहा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उसके पास नियरेस्ट राइवल जो उसका है उससे ज्यादा है इसके पास वोट। ठीक है, पहले वाले के पास ज्यादा वोट्स है। तो अभी क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से जीतेगा। ठीक है, कितने मार्जिन जीतेगा, तो हम ऐसा लिख देंगे, वी विल राइट लाइक दैट द मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, कैन राइट लाइक दिस, द मार्जिन by which successful candidate won the election। ओके, कितने मार्जिन जीतेगा वो, सो वी विल राइट दैट द मार्जिन बाय विच सक्सेसफुल कैंडिडेट वन द इलेक्शन, तो विल मेक ए डिफरेंस ऑफ बोथ। ओके, कितने से जीतेगा वो, तो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 5,77,500 माइनस 3,48,700, ये दोनों क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। कहाँ पे करेंगे, ऑन रफ साइड, विल मेक ए माइनस 5,77,500। ओके, 3,48,700, 007 हमेशा पीछे से लिखना है सेकेंड डिजिट आपको, तो क्या मिस्टेक ना हो। इन दोनों का माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ वी विल मेक इट 15। ओके, अगर यहाँ से इसको 15 कर रहे हैं तो बाजू में से 1 ले रहे हैं, इसको क्या करेंगे 6 कर देंगे। ओके, गॉट इट। नाउ इसको 6 माइनस 8 नहीं होगा तो बाजू में से 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हम माइनस कर रहे हैं ना वो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें कहीं मिस्टेक होगी ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 228800, 228800। सो ये चीज़ आप अपनी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, राइट इट। एंड नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज that Kirti bookstore sold books
Okay, 2,85,891 rupees. Okay, in the first week of June, and the books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and how much? अब इसमें क्या हो रहा है, कीर्ति है उसका फर्स्ट वीक के अंदर सोल्ड हो गया है जो 2 लाख है वो उतना, तो हम पहले लिख देंगे फर्स्ट वीक. We will write first week books sold. Okay, how much books sold? How much rupees of books he sold? She sold 891 rupees. Okay, on second week books sold is 400 rupees, 400,768. Okay, 4,768 rupees. Okay, so what we have to find, हमें क्या फाइंड करना है, 2 वीक का कितना सेल हुआ, 2 वीक का कितना सेल उसके पास हुआ. तो टोटल सेल इन 2 वीक, so total sale in 2 वीक. तो कितना है, फर्स्ट वीक में कितना सोल्ड हुआ, 2,85,891 एंड सेकेंड वीक सी सोल्ड 4,768. हम दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे क्योंकि हमें पूछा है टोटल सेल. ठीक है, टोटल सेल पूछा है मीन्स सम 2,85,891 ओके प्लस 400,768. इन दोनों का सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 686 मीन 6,86,659. ओके, ये हमें मिला total sale in 2 week. Now second thing what we have to find, we have to find that sale is greater in which week, in which week her sale is greater, in first week or second week. So from this you can say that in second week, उसका second week में ज़्यादा sale हुआ था. So we can write here in second week sale is greater. Okay, now how much greater, कितना greater था तो कितना greater था, ठीक है वो भी पूछा है. तो 4,768 माइनस करेंगे 2,85,891 से, therefore 400,768 माइनस 2,85,891. तो हमें क्या आंसर मिलेगा, व्हाट विल गेट, वी विल गेट 1,14,877. 1,14,877. I'd already teach you how to minus. रफ साइड में माइनस करना है ऑन योर राइट साइड ऑफ द बुक. ओके, वहां पे एक लाइन बना लेना तो इट कैन इजी फॉर यू और प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहेगा. ये लिख लीजिए बुक में से. एक बार फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन इज, फर्स्ट वीक में उसका सेल 2 लाख जितना हुआ था, 2 लाख समथिंग. सेकेंड वीक में 4 लाख समथिंग हुआ था. ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था, टोटल सेल. ओके, देन आफ्टर कौन से वीक के अंदर सेल ज्यादा हुआ था, तो सेकेंड वीक के अंदर, सेकेंड वीक के अंदर. ओके, देन आफ्टर कितना ज्यादा हुआ था, तो दोनों वीक में से दोनों वीक को माइनस करना है. तो सेकेंड वीक माइनस फर्स्ट वीक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1,14,777. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ऑन द सेकेंड पार्ट, ऑन द another part, okay, we will study the further
questions of exercise 1.2. So kindly tune with me. Thank you very much.